یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 718. Voiced in Upanga Jamaat Khana, Dar es Salaam on the 31st December 1979. Jire virasat keri vachadi vira bhai yu chalo re jiyo sui jire vira khatana hara sati lok khati gaya re duja khatana ko laga. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. زندہ پرسوں میں نے آپ کے سامنے پرانالیکا کے اوپر واعظ کی. میں نے اپنی ایک واعظ میں کہا کہ امام زمان کے یہ فرمان کے حساب سے کہ تم اپنی سن پرانالیکا کو چھوڑنا نہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ پرانالیکا ہمارے ہاں دو جات کی ہیں. ایک تو ہماری مذہبی ٹریڈیشنز ہیں اور دوسرا ہماری دنیاوی ٹریڈیشنز ہیں. لیکن ہم اسماعیلی اصلاً تو مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے, مذہب ہمارا اسماعیلی ہے, طریقہ ہمارا نظاری ہے. یہ تین چیزیں یاد رکھنا. ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا مذہب اسماعیلی ہے, ہمارا طریقہ نظاری ہے. اسلام دین سب کا ہے جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں. سنیوں کا مذہب سنی ہے اور اس کے اندر بھی الگ الگ ان کے مذہب ہیں. شیعہ مذہب کے اندر بھی الگ الگ فرقے اور طریقے ہیں. اسی طرح سے ہم اسماعیلی ہیں تو بہرے بھی اسماعیلی ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو نظاری اسماعیلیہ کہلاتے ہیں. ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے اور اسلام دین کے اندر ہماری دنیا ہمارا دین دونوں ملے ہوئے ہیں. دین اس کے لیے دنیا کے اندر آیا کہ ہماری دنیا اچھی ہو گئی اور دین کے اندر جتنے بھی فرمان ہیں ان سب کا اچھا اثر ہماری دنیاوی جیون کے اوپر پڑتا ہے. جیسا کہ ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر تم نیک نیتی کے ساتھ مجھ کو یاد کرتے کرتے دکان کھولو, دکان سے ویپار بزنس کرو اور چالو مولا کو یاد کرتے رہو, تو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی گھنٹے دکان کے اوپر بزنس میں گئے وہ بھی عبادت میں لکھے جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا اگر وہ دین کے تابع میں ہے, اگر ہم دنیا کے کام کاج دین کو مد نظر رکھ کے کریں, اگر ہم دنیا کے کام کاج حضرت امام کے فرمان کو یاد کر کے کریں تو ہماری دنیا کے تمام کام کاج بھی دین میں آتے ہیں اور ہمارے لیے عبادت اور بندگی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہماری کھانی پینی, رہنا سہنا, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک, یہ سب چیزیں دین نے بتائی ہیں. مذہب دنیا کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے آیا. مذہب اس لیے انسان پالتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی رہے. ہر مذہب نے ہم کو دنیاوی جیون اچھی طرح گزارنے کے لیے حکم کیے. مذہب نے کہا کہ تم کسی کے ساتھ درہ فریب نہ کرو, مذہب نے کہا چوری نہ کرو, مذہب نے کہا جھوٹ نہ بولو, مذہب نے کہا کسی پہ ظلم نہ کرو, مذہب نے کہا نیتی ریتی سے چلو, اور مذہب نے ہمیں ٹالرنس اور پیشنس سکھائی. کسی نے تمہارا برا کر دیا تو تم اس کو بدلہ لے کے اس کو برباد کرو, ایسا مت کرو, چھوڑ دو, معاف کر دو. مذہب نے ہمیں دنیا میں جیون گزارنے کے لیے سب کچھ بتایا. تو ہماری جو دھارمک پرنالی کا جو ہے وہ اصل میں ہماری جمع خانے کے اندر مذہبی ریت رسم رواج ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی.
لیکن ہماری جو دنیاوی پرانالی کا ٹریڈیشنز ہیں جو ہمارے باپ داداؤں سے چلی آتی ہیں ان کے اندر بھی موسٹلی ٹریڈیشن ہمارے پیروں اور اماموں کے فرمان کے حساب سے رہی. 600 برس پہلے بھی صدر الدین نے کاٹیاواڑ، کچھ، گجرات اور تھوڑا سا علاقہ مہاراشٹر کا جہاں اس نے اسماعیل زیادہ بنائے. پھر صدر الدین سے زیادہ بودھ کا جو کھیتر تھا یعنی لوکیلٹی تھی وہ یہ جگہ کچھ، کاٹیاواڑ، تھوڑا سا بھاگ سندھ کا، سارا نہیں، کیونکہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ شاہ سریل نے کام کیا ہے. شاہ سریل کون؟ پھر صدر الدین کے بیٹے جن کا نام پھر تاج دین ہے، ان کو شاہ سریل بھی کہتے ہیں. تو ان علاقوں کے اندر جب 600 برس پہلے پھر صدر الدین نے الگ الگ جات کے لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا تو ہندوستان کے اندر جو کاسٹ سسٹم ہے جو آج بھی ہے، یہ سسٹم دنیا کے اندر ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں ہے. وہ دیش کے جو کمیونسٹ دیش ہیں اور وہ دنیا کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم کلاس لیس سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، وہاں بھی کلاس تو ہے. دنیا کے اندر کلاس لیس سوسائٹی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ رشیا اور چائنا کی اسٹڈی کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ٹاپ گریڈ کے جو آفیسر ہیں ان کا رہنا کہنا، ان کا جیون، ان کی اٹھنا بیٹھنا، ان کی پگاریں، ان کی آوک، ان کے خرچے، اور جو غریب پرجا ہے ان کے اندر بہت بڑا ڈفرنس ہے. کلاس لیس سوسائٹی ہو ہی نہیں سکتی. خود ایک گھر کے اندر بھی اگر کسی آدمی کے 8-10 بچے ہیں تو 2-3 برس کی عمر سے لے کے 25 برس تک کبھی 8 بچے ہوئے تو سب بچوں کے ساتھ ایک طریقہ سلوک ہو ہی نہیں سکتا. عمر کا حساب ہوتا ہے، سمجھداری کا حساب ہوتا ہے، لیاقت کا حساب ہوتا ہے. ایک باپ کا بڑا بیٹا 25-30 برس کا ہے لیکن وہ مینٹلی ریٹارڈ ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ مینٹلی بڑا ایکٹیو ہے، تو باپ کس کو زیادہ کام کاج اپنے بزنس وغیرہ کا سپرد کرے گا؟ چھوٹے کو دے گا، کیونکہ وہ سمجھدار عقل والا ہے. تو یہاں جو کچھ بھی چیز ہے ڈفرنس ہے وہ سمجھداری کے اندر ہے. تو پھر صدر الدین نے جب یہ دیکھا تو ان کے اندر جو ہندو پن کی یا ہندوستان کی بناوٹ کے خیال جو ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوئے تھے وہ اونچ نیچ غلط قسم کا تھا. ان کو ایک کرنے کے لیے اور ان کے اندر بھائی چارہ پیدا ہو سکے، میل ملاپ ہو سکے، کیونکہ پرانی کاسٹ سسٹم کے حساب سے ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ملتی نہیں تھی. تھوڑی سی ریزرویشن ہمیشہ ہونی چاہیے اور وہ ریزرویشن پریزرویشن کے لیے ہوتی ہے. تو پھر صدر الدین نے ان سب کو خواجہ کا نام دیا. جتنے بھی پیر صدر الدین کے مرید بنے ان کو خواجہ نام دیا. خواجہ کہتے ہیں سوداگر کو، خواجہ کہتے ہیں بڑے سیٹ کو، بیپاری کو، سب کو خواجہ کہہ دیا. وہ خواجہ کا لفظ پھر کھوجا ہو گیا. کھوجے پھر صدر الدین کے بودلے ہیں. یہ جو اسناثری ہندوستان کے ہیں یہ کھوجے بھی ان کے باپ دادا پھر صدر الدین کے بودے ہوئے تھے. اور 1900 سن کے اندر آج سے لگ بھگ 80 برس پہلے یہ لوگ اپنے مذہب سے نکل کے اسناثری بن گئے، مگر ان کے باپ دادا بھی پھر صدر الدین کے بودے ہوئے ہیں. جب وہ لوگ اسماعیلی بنے تو ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو گپتی رہے اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل ظاہر میں مسلمان ہو گئے. جو لوگ ظاہر میں مسلمان ہو گئے ان کو تو خواجہ کا لفظ ملا، مگر جو گپتی رہ گئے ان کو خواجہ کا لفظ نہیں ملا، کیونکہ خواجہ لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. تو ان لوگوں کا جو ڈریس تھا، چمار، بھیڑ، بھنگی، کھیڑوت، دکاندار، پنڈت، ہر قسم کے ہر کلاس کے لوگوں کو اس صدر الدین نے اسماعیلی بنایا. تو ان کے اندر یہ جو بہت زیادہ زبردست ڈفرنس کاسٹ کا تھا وہ مٹانے کے لیے ایک اسماعیلی مذہب کی کاسٹ میں آ جائے خواجہ لقب دیا. اور پھر صدر الدین نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی سب قسم کی یہ جدی جدی ڈریسنگ جو ہے یہ چینج کرو. سب سے پہلے پھر صدر الدین نے
ہماری ڈریسنگ چینج کرائی. ڈریسنگ میں کیا تھا؟ ایجار پہنا اور کرتا پہننے کا حکم دیا. سر کے اوپر پگڑی باندھی جاتی تھی. اس کے پہلے الگ الگ قوموں کے الگ الگ ڈریسز تھے. جو براہمن قسم کے لوگ تھے وہ لوگ دھوتی پہنتے تھے اور اس کے اوپر انگرکھا پہنتے تھے. گلے کے اندر وہ پٹی ڈالتے تھے. سر کے اوپر پگڑی باندھتے تھے, تلک لگاتے تھے. اس کے ڈریس پر سے پتہ لگتا تھا کہ یہ براہمن ہے. ڈریس پر سے پتہ لگتا تھا کہ یہ بھنگی ہے. ڈریس پر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چمار ہے. ڈریس پر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دکاندار ہے, ویپاری ہے. تو پیر صدر الدین نے یہ اونچ نیچ مٹانے کے لیے ان کو ڈریس کے لیے ایجار اور کرتا اور سر پہ پگڑی کا فرمان کیا. پیر صدر الدین کے جو دوسرے فرزند تھے پیر تاج دین, پیر حسن کبیر دین کے بھائی تھے. جب ہی پیر حسن کبیر دین کی وفات ہوئی, مولانا امام مستنصر باللہ کا زمانہ تھا. امام مستنصر باللہ سیکنڈ, تو انہوں نے پیر صدر الدین کے دوسرے فرزند جن کا نام تاج دین تھا ان کو پیری جوما بخشا. ان کو شاہ سریل کہتے ہیں. پیر تاج دین نے گجرات کے اندر سدھ پور جو جگہ ہے وہاں جا کے بہت برس رہائش کیا. اور سدھ پور کے اندر جو کھیڑوت ورگ کے اور وہ لوگ کہ جو گائے بکری بھینس وغیرہ کو رکھتے تھے اور پالتے تھے, یعنی کیٹل کیپرز تھے, ان کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. ان لوگوں کی بیچاروں کی کوئی عزت آبرو سوسائٹی میں نہ تھی. تو پیر صدر الدین, پیر تاج دین نے, پیر شاہ سریل نے ان کو جب اسماعیلی بنایا تو ان کا نام رکھا مومنا. ہمارے ہاں جو مومنے لوگ ہیں جن کا خاص مقام سدھ پور ہے زیادہ, وہ مومنے شاہ سریل کے بنائے ہوئے ہیں. بہت نرم آدمی ہیں, ان کا کیریکٹر بھی بہت اچھا ہے, اچھے محنتو ہیں. لیکن ان کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے تیکھے مغز کے ہیں, بڑے گرم دماغ کے ہیں. اور دوسری, امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ ان کے اندر دو بری باتیں ہیں مومنوں کے اندر کہ جو نکل جانی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کی بیویاں بھگا کے لے جاتے تھے. دوسری بات ان کی بری یہ تھی جو آج کل نہیں ہے, نکل گئی امام کے فرمان سے. دوسری بات یہ تھی کہ لڑکی کی شادی کر دیتے تھے مگر لڑکی کو ساسرے بھیجتے نہیں تھے. تو امام سلطان محمد شاہ نے جب فرمان کیے تو ان لوگوں کے اندر یہ سدھارا ودھارا ہو گیا. علی شاہ محبوب نے مومنوں کو اپنا سگا کے طور پہ ظاہر کیا. فرمایا مومنے جو ہیں وہ میرے سگے ہیں, تو تم مومنوں کی بڑی عزت رکھو. شاہ سریل کو جماعت خانے کے اندر لکڑیاں پڑی پیر تاج دین کو, اور اس وجہ سے تیسرے دن آپ نے یہ دنیا چھوڑ دی. یہ آج میں نہیں بتاؤں گا کہ کیوں لکڑیاں پڑی, کسی بات کے اندر میں کہہ بھی چکا ہوں. پھر بھی نور مبین کے اندر اپنی ہسٹری کی چوپڑیوں میں اس کا ذکر ہے. آج اس کا موقع نہیں, لمبا ٹائم نکل جائے گا. امام اس کے اوپر بڑے ناراض ہوئے کہ جماعت خانے کے اندر دو پارٹیوں کے اندر لکڑیاں چلی اور پھر تاج دین بیچ میں آئے چھڑانے کے لیے, تو ان کو بھی لکڑیاں پڑی. اس کی وجہ سے دنیا چھوڑ دی. مولا بہت ناراض ہوئے اور ہندوستان کے اندر پیر بھیجنا بند کر دیا, اور پیر جوما امام مستنصر باللہ نے اپنے پاس رکھ لیا. کئی برس ہو گئے, تالیکہ تک بھی نہیں بھیجا. لاہور کی جماعت کا مفتی سامداس وہ کچھ آدمیوں کو لے کے امام کے حضور میں ایران گئے, اور ایران جا کے مولا کے پاؤں پڑے. مگر جب یہ لوگ ادھر سے نکلے تو اس وقت امام مستنصر باللہ کا جامع تھا. مگر جب یہ لوگ ایران پہنچے, وہ زمانے میں لوگ پاؤں سے جاتے ہیں اور ان کو 4-5 مہینے لگ گئے. جب وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ امام مستنصر باللہ نے بھی جامع پورا کیا, اور امام عبدالسلام اسماعیلی امامت کے تخت کے اوپر آئے ہوئے ہیں. امام کے حضور میں جا کے روئے پیٹے, جماعت کی طرف سے معافیاں مانگی. تو امام نے فرمایا اچھا میں جماعت کو معاف کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پیر کی بے ادبی کی اور اپنے پتا شری امام مستنصر باللہ کی
लिखी हुई एक चौपड़ी थी फरमानों की। उस चौपड़ी का नाम है पंदियात जवान मर्दी, यानी मोमनों के लिए। उसके अंदर नसीहतें हैं, इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह के फरमान हैं। जैसे इमाम सुल्तान मुर्शद की कलाम इमाम मुबीन है, इस तरह से इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह के फरमानों की चौपड़ी पंदियात जवान मर्दी दी जमात को। मुखी को कहा, मुखी ये तुम्हारा पीर है। मौला के पांव पड़े और ये चौपड़ी लेके अपने सिर के ऊपर रखी और इमाम से रुखसत चाही और उधर से लाहौर तक पांव से चले आए तो मुखी शामदास सारा रास्ता ये चौपड़ी अपने सिर पे रख के चलते थे। जब रात को सोते थे तो सीने के ऊपर रखते थे, जमीन पे रखते नहीं थे। कभी मसे पेशाब के लिए, कहीं नहाने धोने के लिए जाना होता तो उनका दूसरा जो साथी था उसको कहते थे कि ये चौपड़ी उठा के सिर पे रखो, यानी उस चौपड़ी को कभी भी जमीन पे रखा नहीं गया। ऐसा बहुत दफा हुआ है कि जमात के अंदर मुफ्ती कांवड़िया ने किसी को कहा गिनान बोलो, फरमान बोलो। हम ऐसा बैठते ना पलाकी वार के तो पांव के पास गिनान की किताब पड़ी होती है, फरमान की किताब पड़ी होती है। आपने कभी मुसलमानों के अंदर देखा कुरान को कभी जमीन पे रखते हैं? कुरान को सिर पे रखते हैं या कोई ऊंची जगह पे रखते हैं, कबाट बनाते हैं और पढ़ने के लिए भी वो एक रहल बनाते हैं, स्टैंड बनाते हैं, उसके अंदर किताब पड़ी होती है कुरान की, तब वो पढ़ते हैं। कुरान पाक को कभी जमीन पे नहीं रखते। हमारी ये ट्रेडिशन और प्रणाली का है कि जिस चीज के अंदर इमाम के फरमान या गिनान पीरों के लिखे हुए हैं उनको अल्लाह मेरे यहाँ कभी जमीन पे मत रखो, कभी जमीन पे मत रखो। अगर कोई ऐसी जगह पे बैठे हो तो अपनी गोद में रखो, लेकिन जमीन पे तो मत रखो। इन किताबों की इज्जत करो। आपने कभी हजर इमाम की शादी की फिल्म देखी? देखी, सबने देखी। 2 दफा दारुस्सलाम के अंदर वो फिल्म चल चुकी है। हजर इमाम के हाथ में जब वो मुल्ला ने जिसने निकाह पढ़ाया पेरिस के अंदर साहब को जब कुरान शरीफ की किताब दी तो खुद धनी उस किताब को साहब ने अपने माथे पे लगाया और उसको चुंबन किया और कितनी इज्जत के साथ कुरान शरीफ को वापस किया। यानी इमाम का कलाम, फिर भी उसने हमको बताया कि अपने मजहब के अंदर अपनी चौपड़ियों की, अपने शास्त्र की इज्जत करो। दुनिया के अंदर मैंने एक ही नमाली कौम इस्माइलियों की देखी। नमाली का शब्द इसलिए बोलता हूं कि हमारी कौम के अंदर समझदारी बहुत थोड़ी है और समझाया जाए तो बहुत थोड़े आदमी उस चीज का ख्याल करते हैं। अपने मजहबी शास्त्र की बेअदबी, जमात खानों की बेअदबी जितनी इस्माइली कौम के अंदर, और वो भी खसूसन करके अफ्रीका के अंदर है, और मैंने इधर नहीं देखा, इधर नहीं। गिनानों फरमानों की किताबें नीचे पड़ी होती हैं, पांव के पास पड़ी होती हैं। एक आदमी ने चश्मा यहां रखा है और गिनान की किताब पांव के पास रखी है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये चश्मा कीमती है कि ये कीमती है? चश्मा तो सीने के साथ लगा के रखा है और गिनान की किताब पांव के पास रखी है। ये हमारी समझदारी का कसूर है और उसमें हम मिशनरियों का कसूर भी है। मैं भी वांक में हूं, मेरे दूसरे मिशनरी भाई भी वांक में है। जमात का कसूर खास तौर पे जवानों बच्चों का इसलिए नहीं है कि उनको कोई ये बातें कहने वाला नहीं। अगर जमात के अंदर आवाजें होती रहें, जमात के अंदर कहते रहें तो लोगों को कुछ न कुछ पता लगता रहे। नसीहत की बातें बाज दफा कड़वी होती हैं और कड़वी होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी में जब बुरी आदत पड़ जाती है तो उसको जब कहो कि तुम्हारी ये आदत बुरी है, आड़कतरी रीत से कहो या डायरेक्ट रीत से कहो तो उसको बुरा लगता है। चलो, नबियों की बातें भी बुरी लगी, नबियों की बातें भी लोगों को बुरी लगी, नबियों की आवाजें सुन के कई आदमियों ने नबियों को मारा भी। मौलाना हजर इमाम का शुक्र है कि हमको कभी मार नहीं पड़ी मिशनरियों को, फिर भी किसी को मारने का दिल होवे तो मैं अभी नीचे उतरूंगा, भले मार लेना। लेकिन कड़वी बातें बुरी लगती हैं, मैंने उस चीज का कभी ख्याल नहीं किया। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि उस वक्त जब हमारी जमात
जमात के हिसाब में एक टोड़ा बन के पहली दफा इमाम शाह अब्दुल सलाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब ईरान गए और वहाँ महीना डेढ़ महीना ठहरे, और जब वो वापस आए तो उसके बाद इधर से हर साल एक एक टुकड़ी, कभी 40-50 की, कभी 100-200 की, मौलाना हज़रत इमाम का दीदार करने के लिए हिंदुस्तान की जमात के लोग ईरान जाया आया करते थे। इस तरह ये आने जाने में हमारी जमात के जो लोग इधर के थे उनके ड्रेसेस चेंज हुए, और ख़ास तौर पे आप कभी ईरान जाओ तो ईरानियों का जो नेशनल ड्रेस है वो शलवार है। जैसे पंजाबी लोग शलवार पहनते हैं ना, ये बाइयाँ पाकिस्तानी ड्रेस पहनती हैं, ये शलवार मर्दों के अंदर। औरतें शलवार नहीं पहनती, औरतें लंबा फ्रॉक पहनती हैं और फ्रॉक के नीचे इजार पहनती हैं ईरान के अंदर, और उसके ऊपर वो चादर पहनती हैं, जो कि हम इस्माइलियों के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर चादर नहीं, लेकिन दुपट्टे की तरह, यानी पछेड़ी होती है, जो पछेड़ी सिर्फ मुंह खुला रखती है। पछेड़ी को इस तरह लपेटती हैं कि कान बंद हो जाते हैं, पेशानी भी बंद हो जाती है, और थोड़ी से सिर्फ आंखें, नाक और मुंह खुला रहता है। ये ईरानियों का ड्रेस है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की माता श्री को आप देखो, उसकी फोटो है, वो माता का जो ड्रेस है वो प्योर ईरानी ड्रेस है। वो ड्रेस अपनी भाइयों ने हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर पे पंजाब के फ्रंटियर के, बलूचिस्तान के और सिंध के एरिया के अंदर अपनाना शुरू किया, क्योंकि इस्माइलियों का कॉन्टेक्ट जो था ईरानी इस्माइलियों के साथ हो गया। लेकिन काठियावाड़, कच्छ वगैरह, कच्छ के अंदर भी थोड़ा चेंज हुआ, गुजरात काठियावाड़ के अंदर ड्रेस चेंज न हुए, जब तलक के मौलाना हसन अली शाह माँ बाप आए। जब इमाम हसन अली शाह 1842 में हिंदुस्तान में आए और कच्छ काठियावाड़ की, गुजरात की जब मुसाफरी की, तो उस जमाने के अंदर हमारी भाइयों का ड्रेस वो था कि जो आज काठियावाड़ के अंदर खेडूत वर्ग की भाइयों का है। चोली होवे, घाघरा होवे, और पेट और पीठ नंगी होवे, और उसके ऊपर पछेड़ी होवे, लेकिन छेड़ा निकाले, घूंघट निकाले। अली शाह और हसन अली शाह माँ बाप शाह पीर दोनों झौमा जब ही निकले तो रास्ते के अंदर बहुत सी बाइयाँ जो छेड़ उठाती थी गाय बैल का, तो मौला को देख के मुंह फिरा ले रहे। वजीर इस्माइल को पूछा हसन अली शाह माँ बाप ने कि ये क्यों औरतें मुंह फिरा लेती हैं? अरब के खुदावन कि ये तेरी रूहानी दीकरियां हैं और अदब के हिसाब से तेरा सामने नहीं आती। जिनके उस सिर पर पचेड़ियाँ होती थी वो चढ़ा निकाल लेती थी। फिर मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने जमातों के अंदर फरमान किए कि ये तुम्हारा जो ड्रेस है वो अच्छा नहीं। लंबा फ्रॉक पहनने का हिंदुस्तान की जमातों को हुक्म हसन अली शाह माँ बाप ने फरमाया। लंबा फ्रॉक ये ईरानी ड्रेस है असल में। अगर वेस्ट ने भी सीखा है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर डिनर पार्टियों और ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर औरतें जो हैं वो लंबा फ्रॉक कंधे से पांव तक का जो पहनती हैं, तो यूरोप में ये ड्रेस पहले नहीं था। ये असलन ड्रेस जो है वो ईरानी ड्रेस है। हसन अली शाह माँ बाप ने अपनी औरतों को लंबा फ्रॉक और ऊपर पछेड़ी पहनने का हुक्म किया, और मर्दों के लिए इजार का हुक्म फरमाया। धोती निकाल डालो, फरमाया इजार पहनो, लंबा कुर्ता पहनो, ऊपर पगड़ी पहनो। कई लोग जो अच्छे थोड़े मालदार थे वो वेस्ट कोट पहनते थे। आस्ते आस्ते जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जमा आया तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इनको डगला पहनने के लिए, डगला क्या है, लंबा कोट, सिर पे सुनहरी पगड़ी। हसन अली शाह माँ बाप ने ऑफिसरों का ये ड्रेस बनाया था कि लंबा कोट, घुटने तलक का, नीचे इजार या पटलून और सिर के ऊपर सुनहरी पगड़ी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने गोंडे की टोपी टर्किश कैप के लिए फरमान किया, और कई लोग मखमल की मरून कलर की टोपी वगैरह पहनते थे। टोपी तो खैर अभी निकल गई, लेकिन ये ड्रेस चेंज किया। ड्रेस हमारी कल्चरल साइड है, हमारी ट्रेडिशन है। खोजा ड्रेस सारी दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल माना गया।
सुनहरी पगड़ी, लंबा कोट, और जो बड़े ऑफिसर हाजिर इमाम के हैं जिनको जब्बे मिले हुए हैं, ये जब्बे जो हैं ये इस्माइली ट्रेडिशन है, दुनिया की और किसी कौम के अंदर ये ड्रेस नहीं। तो ड्रेस की जब बात आई 63 में जब हाजिर इमाम लंदन के अंदर गए और अलेक्जेंड्रा हॉल में जब गए माँ बाप, तो माँ बाप ने वहां ड्रेसेस के लिए फरमान किए, ड्रेसेस के लिए फरमान किए। माँ बाप ने फरमाया, मैं बहुत एलेबोरेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें इतना कहता हूं कि मर्यादा वाले अच्छे कपड़े पहन के जमात खाने के अंदर आओ, बहुत सूखे मिनी शर्ट्स पहन के, स्कर्ट्स वगैरह पहन के, स्लीवलेस फ्रॉक्स पहन के, और ऐसे कपड़े के जो अच्छे नहीं, इनडिसेंट हैं, वो औरतों के अंदर या औरतों के अंदर आजकल ये एक रिवाज हो गया जो दीन इस्लाम और इस्माइली ट्रेडिशन के विरुद्ध है कि खुले बाल, बिल्कुल खुले बाल, लंबे लंबे बाल खुले, चोटली बोटली कुछ नहीं, रिबन कुछ नहीं। ये क्रिश्चियन आइडिया है। वो क्रिश्चियन जो साउथ इंडिया के अंदर मद्रासी वगैरह है, उनके अंदर भी यह रिवाज है कि वो लंबे बालों को खुला छोड़ देते हैं। ये हमारी ट्रेडिशन नहीं। इस्लाम के अंदर ये मातम की निशानी है। औरत अपने बाल उस वक्त खुले रखती है कि जब उसका बाप मर जाए, माँ मर जाए, बेटा मर जाए, धनी मर जाए, भाई मर जाए, तो अपना गम शोक मनाने के लिए खुले बाल रखती है। खुले बाल इस्लाम के अंदर मनाही की गई और इस्माइली ट्रेडिशन भी इस चीज के लिए खिलाफ है। इसी तरह से काले ड्रेस पहन के जमात खाने में आना या काला ड्रेस यूं भी पहनना हमारे मजहब के अंदर मना किया गया। हमारे बहुत से इमामों ने, पीरों ने काले ड्रेस को मना किया है, उसके लिए बड़े सख्त फरमान भी किए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने। मर्दों के अंदर मैंने एक चीज देखी, इस वक्त जमात के अंदर इतने मर्द लोग बैठे हैं, लेकिन मेजॉरिटी हैं वो आधी स्लीव्स पहन के बैठे हुए हैं। हमारे जमात खानों के अंदर ये ड्रेस बराबर नहीं, ये चीज बेअदबी और हमारी ट्रेडिशन के खिलाफ है। अब तो मुखी कामड़िया दोनों सूट पहन के आते हैं, लेकिन ऐसे भी मुखी कामड़िया जो आधी बाल लेके मुखी कामड़िया की गादी के ऊपर बैठते थे। ये चीजें अच्छी नहीं है। हम इसके लिए जवाब और बहाना निकालते हैं गर्मी का। तो ये चीज जो अभी ये चीज हो गई ऊंधी सीधी, ये गए 5-10 साल में हुई। 10 साल पहले गर्मी नहीं थी, उस वक्त लोग सूट पहन के जमात खाने में आते थे। आप देखो जब ये हज का महीना आता है, हर साल 11 दिन हज जो है वो जल्दी आता है, एवरी ईयर, क्योंकि जो इस्लामी कैलेंडर है वो 11 दिन छोटा है। तो हज हर साल बदलता रहता है। जब गर्मी के दिन होते हैं तो ठीक है, एक ही चादर होती है मर्दों के लिए, औरतों के लिए 2 सफेद चादरें होती हैं, और वो 2 सफेद चादरें, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए पछेड़ी के तौर पे। लेकिन जो मर्द लोग होते हैं वो राइट हैंड खुला रखते हैं। आपको मालूम नहीं कि जब जनवरी के अंदर हज का महीना आता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो मक्का के अंदर इतनी ठंडी होती है कि उस ठंडी की वजह से सैकड़ों आदमी मर जाते हैं। लेकिन फिर भी उस ठंडी में बचने के लिए किसी भी हाजी ने कभी ना ब्लैंकेट लिया, ना स्कार्फ लिया, ना स्वेटर पहना, अंदर भी नहीं। ट्रेडिशन यानी ट्रेडिशन, सिस्टम यानी सिस्टम। गर्मी होवे कि ठंडी होवे, उस चीज को माना जाना चाहिए। हम अगर 2 घंटे की 1 घंटे जमात खाने आने के लिए गर्मी से इतना घबराते हैं कि हमें जमात खाने का अदब का ख्याल नहीं रहता, तो जमात खाने की भले बेअदबी होवे, लेकिन हमको सुख मिले, और वो भी हम पंखे ढूंढती हैं। चलो कोई बात नहीं, पंखे तो हैं, लेकिन जमात खाने का अदब, हिशीमत, हमारी ड्रेसिंग वगैरह का ख्याल हमें पहले होना चाहिए। आओ जमात खाने के अंदर लाजिम नहीं है कि कोट पहनो, लेकिन बुश शर्ट की तरह लॉन्ग स्लीव्स पहन के आओ, और काफी लंबा होना चाहिए। वो लोग के जो खाली शर्ट को अंदर ठोंस के आते हैं और ऊपर पट्टी होती है, तो क्या किसी क्लब में टेनिस खेलने के लिए जाते हो? दीनदारों, हमें इन चीजों को समझना चाहिए। जमात में कोई कहने वाला नहीं, कोई नहीं, कोई ना कोई तो होना चाहिए कि ताकि हमको हमारी भूल का पता लग सके। ये जमात खाना है, हजर इमाम के हुजूर में जा रहे हो,
अच्छी सोसाइटी में जा रहे हो, इस सोसाइटी के अंदर अच्छे मर्यादा वाले कपड़े पहन के आओ। तो इमाम ज़मान भी इस बारे में खुश हो गए। ये हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। अपने पाँव धो के आओ। पाँव धोना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप मोजे पहने हुए हैं तो ठीक है, लेकिन कभी पाँव आपने गंदे हुए हैं, कई लोग चंपल पहन के आते हैं तो उनको पाँव धो के जमात खाने आना चाहिए। बूट पहन के आते हो और घर के से नहा के वुज़ू करके पाक साफ होके आते हो तो आपको पाँव धोने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चंपल पहन के जो लोग पाँव से चल के आते हैं उनके पाँव में डस्ट लगी होती है, उनको ये बात का ख्याल होना चाहिए। मौलाना अज़हर इमाम बम्बई गए। बम्बई गए, ये वाक़या दो जगह हुआ, एक बम्बई में हुआ और वो हुआ इधर करीमाबाद, जिसको हम कांडी मोहल्ला कहते हैं। और बिल्कुल आइडेंटिकल ऐसा एक वाक़या बगीचा जमात खाना कराची के अंदर हुआ। दोनों जगह दो लड़कियों की बात थी। लड़कियों ने हज़रत इमाम के हुजूर में नीचे वो कुर्सी पर बैठी थी, छोटी उम्र में पोलियो हो गया था तो दोनों पांव उसके बूट के अंदर फंसे हुए थे। अब वो जमात खाने आवे तो बहुत देर लगती है और तकलीफ होती है, उसके बूट को रिमूव करके फिर पहना जाए। इस वजह से वो जमात खाने नहीं आती थी, नीचे कुर्सी के ऊपर बैठी रहती थी। मौलाना हज़रत इमाम गाड़ी से नीचे उतरे तो ये लिफ्ट के पास ही इसकी कुर्सी पड़ी हुई थी। मौलाना हज़रत इमाम ने इसको देखा, स्माइल किया, इसने कुछ हाथ ऊंचा किया, लेकिन माँ बाप ऊपर चले गए। जब साहब वापस नीचे उतरे तो साहब इसके पास गए। हज़रत इमाम ने पूछा, तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? कहती, हाँ खुदावंद, मैं जमात खाने के सवाब से मैं महरूम हूँ, मैं जमात खाने नहीं जाती, इधर नीचे आती हूँ लेकिन ऊपर नहीं आती। और रो पड़ी, क्योंकि खुदावंद ये मेरी हालत है, मैं ऊपर आ नहीं सकती। हज़रत इमाम ने फरमाया, तुमको ये बूट उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इन बूटों के साथ ऊपर आ सकती हो, लेकिन देखो तुम कपड़े का एक कवर बनाओ। जब तुम जमात खाने की सीढ़ी चढ़ने लगो उसके पहले वो कपड़े का कवर अपने बूटों के ऊपर डाल दो। साहब कहते हैं इसलिए कि रास्ते की धूल मिट्टी जमात खाने में न जावे। मौला ने इजाजत दी। ऐसा ही फरमान बगीचे जमात खाने के अंदर किया। उस लड़की को यही फरमाया कि तुम दो ऐसे कवर्स बना रखो कि जब ये जमात खाने की सीढ़ी या लिफ्ट वगैरह तुम्हें चढ़नी होवे तो उस वक्त तुम वो कवर डाल के फिर ऊपर आओ, इसलिए कि बाहर की धूल मिट्टी जमात खाने नहीं आनी चाहिए। हमारी ट्रेडिशंस में, हमारी सोसाइटी के अंदर घर वगैरह की बाबत में जो इस वक्त खामी रही कनाडा वगैरह की जमातों में, एक तकलीफ पड़ी। और वो तकलीफ ये हुई कि बहुत से लोगों ने अपने माइसर को कनाडा बुलाया और कनाडा बुला के अपने माइसरों को कितना ध्यान रखना चाहिए नहीं रखा और छोड़ दिया। इन लोगों ने इमाम के हुजूर में कुछ अर्ज़ें भी रखी। हमारी ये एक मजहबी और हमारी सोशल दोनों तरीके की ये ट्रेडिशन है। मजहबी इसलिए मैंने कहा कि हमको अल्लाह रसूल का हुक्म है कि अपने मावितर की सेवा करो, ये हमारी ट्रेडिशन है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर नहीं, वहां तो 14-15 साल के लड़के लड़कियां माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। ये स्वार्थवृत्ति, ये जो टेंडेंसी सेल्फिशपने की है, हमारे मजहब के अंदर इजाजत नहीं। हमको उस चीज के लिए सख्त हुक्म किया गया कि जो आदमी अपने माँ बाप को दुख देता है उसकी गति नहीं, उसको नजात नहीं मिलेगी। माँ बाप को दुख देने वाले आदमी को नजात नहीं मिलेगी। माँ बाप को दुख देने वाला आदमी जो है वो गुनहगार है। माँ बाप को दुख देने वाला आदमी खुदा ताला की नाराजगी लेता है। माँ बाप को दुख देने वाले आदमी की इबादत बंदगी नहीं रहती, उसकी बरकत चली जाती है। हमको हुक्म किया गया कि अपने माता पिता का ख्याल रखो। कुरान शरीफ में 3 जगह इस बात के लिए हुक्म आया कि तुम्हारे पास से तुम्हारा जब हिसाब किया जाएगा तो माता पिता की तुमने कितनी सेवा की इसका हिसाब मांगा जाएगा।
माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का भरण पोषण करना बुढ़ापे की उम्र के अंदर हमारे मजहब की और हमारी सोसाइटी की ट्रेडिशन है, ये फरमानों में है और ये एक बहुत बड़ा सवाब माना गया। माँ बाप के अंदर सास ससुरा भी आए, सास ससुरा भी माँ बाप ही हैं। सगे माँ बाप जिनके पेट से हमने जन्म लिया या हमारे सास ससुरा, औरत के सास ससुरे होंगे या मर्द के सास ससुरे, ये माता पिता के तौर पे हैं सब के सब। इनकी इज्जत होनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, उनको राजी करना चाहिए और उनका गुस्सा और उनकी कुछ खराबियां ऐसी आदतें होंगे भी तो सहन कर लेनी चाहिए। माता पिता को तोछड़े शब्दों के अंदर कहना नहीं चाहिए, उनका मुंह नहीं तोड़ना चाहिए, कोई मेना तोड़ा मार के। हम जिस छोटे थे, हम छोटी उम्र के अंदर कितनी चीजें तोड़ चुके हैं, कितनी खराबियां कर चुके हैं, कितनी मस्तियां की हैं, कितने हमने अपने माता पिता के हुक्म की नाफरमानी की है, फिर भी हमारे माता पिता ने हमको प्यार करके खिला पिला के बड़ा किया, एजुकेशन दी। अब वो बुढ़ापे में आ गए, बुढ़ापे की उम्र के अंदर बहुत दफा मगज शक्ति कमजोर हो जाती है। माता पिता की उम्र के हिसाब से जो डिफरेंस होता है औलाद में, बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं कि जो बच्चों को पसंद नहीं होती। एजुकेशन का डिफरेंस हो गया, टाइम का डिफरेंस हो गया, एक जनरेशन डिफरेंस हो गई। इस वजह से अगर माता पिता के अंदर, बुजुर्गों के अंदर हमको कोई उनकी ऐसी आदत जो नापसंद है तो भी उनके मुंह के ऊपर मेना मत मारो, उनको उस आदत के लिए नरमास मिठास से कह सकते हो ताकि उनको बुरा न लगे, इस तरीके से कहो, मगर उनका दिल न टूटना चाहिए, उनका अपमान न होना चाहिए। जो आदमी अपने माता पिता की सेवा करता है, जो माता पिता को राजी करता है, मैं दुनिया के अंदर बहुत घूमा फिरा, हजारों ऐसे आदमियों को पर्सनली भी जानता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, माँ बाप की सेवा करने वाले हमेशा खुशी रहे, माँ बाप को तंग करने वाले हमेशा दुखी रहे। एक आदमी ने हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में मेहमानी रखी, आंखों में पानी आया, कहता खुदावन रोटी मेरे आगे है, मैं पीछे हूं, मैं सुबह जमात खाने से जाके न्याज पी के 6 साढ़े 6 बजे दुआ पढ़ के मैं उधर जाता हूं, पाँव से दुकान खोलता हूं, रात के 9-10 बजे तक खुदावन मैं 15 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करता हूं, मुझे बरकत नहीं मिलती, मेरा पूरा खर्चा नहीं उठता। मौला के पाँव में पड़ा। अगर इमाम फरमाया तुमने किसी की बद्दुआ ली है, कहते खुदावन मालूम नहीं किसकी बद्दुआ ली। मौलाना हाजिर इमाम फरमाया माँ बाप की खिदमत करो। मुंह नीचे करके कहा खुदावन माँ बाप दोनों गुजर गए। अर्ज की कि मौला के पास से खुदावन अब मैं किसकी सेवा करूं। हाजिर इमाम पूछते हैं तुमने माँ बाप को दुख दिया था? कहते हाँ खुदावन मैंने माँ बाप को दुख दिया। माँ बाप फरमाया अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुत जब आजिज़ी वगैरह की, फरमाया तुम्हारी औलाद बड़ी होगी वो सुखी होगी, तुम नहीं। माता पिता को दुख देने वालों के लिए हमारे मजहब की किताबों में एक और चीज है जो मैं आपको बोलूं। मैं जो तो बोल चुका हूं, मगर होता क्या है कि एक जमात खाने में वाज होती है तो दूसरी जमात वालों को पता नहीं लगता और सब जगह एक चीज रिपीट नहीं भी होती। 6 किस्म के लोग हैं जिनके लिए पीरों ने कहा कि उनको मरने के बाद अवगतिया के तौर पे 5000 बरस तक मैक्सिमम रखा जाएगा। 5000 साल तक वो रूहें उनकी भटकती रहेंगी, उनको गति नजात नहीं मिलेगी, वो अवगतिया रहेंगे। 5000 मैक्सिमम टाइम है। 5 बरस भी होवे, 50 बरस भी होवे, 500 बरस भी होवे, लेकिन 5000 साल तक उन लोगों को अवगतिया रहना पड़ेगा। नंबर 1, जिन्होंने हजरत इमाम की बैयत की और बैयत तोड़ डाली, हजरत इमाम का सामना किया, उनकी इबादत बंदगी रद्द, उनकी गति नहीं। नंबर 2 वो कि जिन्होंने अपने माता पिता को दुख दिया, उनकी गति नहीं, भले वो कितनी भी इबादत वाले होंगे, उनको गति नहीं मिलेगी। अमुक टाइम के बाद फिर खुदा ताला उनको मुआफ करे। मैंने कहा
کہ 5 दिन से लेके 5000 साल तक का टाइम, अभी किसी को खुदा कितने टाइम तक अवगतियां रखता है, ये उसके अमाल और करनी के ऊपर है। पहला नंबर वो आदमी की गति नहीं कि जो आदमी ने इमाम की बैत की और फिर इमाम ज़मान का सामना किया, उसकी बैत तोड़ डाली। एक वो आदमी जिसने अपने माता पिता को दुख दिया। तीसरा वो आदमी कि जिस आदमी ने किसी कुंवारी छोकरी के ऊपर बलात्कार किया, उसकी आबरू लूटी। चौथा वो आदमी कि जिसने किसी निर्दोष के ऊपर इल्जाम लगा के, दोष लगा के उसको बर्बाद कर दिया। ऐसे आदमी को गति नहीं मिलेगी। पांचवा वो आदमी कि जिसने गुरु को, इल्म देने वाले को, दुनिया का इल्म के दीन का इल्म, गुरु को उसने दुख दिया और मारा, उसकी भी गति नहीं है। और छठा आदमी वो कि जो आघात करता है, उसकी भी गति नहीं। तो ये 6 लोग अवगति आ जाएंगे। 6 प्रकार के लोगों की गति नहीं होएगी। उसमें एक माता पिता को दुख देने वालों की है। हमारी ट्रेडिशंस के अंदर है ये चीज, ये हमारे मजहब की रीत है और ये प्रणाली का है कि अपने बुढ़ों को, अपने बुजुर्गों को सुख दो, उनकी खातिर खुद दुख उठा लो, लेकिन बुढ़े बुढ़ियों को, बुजुर्गों को सुख दो, उनकी इज्जत करो। सिर्फ माता पिता ही नहीं, फुआ, मामा, चाचा, नाना, दादा, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों की इज्जत मान होनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमारी प्रणाली का ट्रेडिशन ये भी है कि हम मुखी कामड़िया की जमात के अंदर अमलदारों की, जिनको हजर इमाम ने नेमा हुआ है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो शाम के अभ्यागत हैं। शाम यानी प्यारा। प्यारा कौन है हमारा? हजर इमाम। हजर इमाम के जो भेजे हुए जो अमलदारी हैं, हजर इमाम के बनाए हुए वडील हैं, हजर इमाम ने जिनको इज्जत दी है, हजर इमाम ने जिनको बड़ा किया है, और इसमें नंबर 1 मुखी और कामड़िया है। इनकी इज्जत मान होनी चाहिए, उनके सामने कोई बेअदबी नहीं होनी चाहिए, उनको अपने माता पिता की तरह समझना चाहिए, भले वो उम्र में छोटे भी क्यों ना हो, मगर उनकी इज्जत आबरू होनी चाहिए। ये हमारे मजहब की, हमारी जीवन की ट्रेडिशंस में आता है। हमारी ट्रेडिशंस में बेहिसाब चीजें हैं। मैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट और बड़ी बड़ी चीजें ही बताऊंगा। मैं आपको एक मिसाल दूं। हमारी घर के अंदर रोटी वगैरह तो हर रोज पकती है। दोपहर को खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं। बाहर ऐसी फैमिलियां हैं कि टेबल पड़ा हुआ है, जो कोई भी आया बैठ गया, खा के उठ के चला गया, आके बैठा, खा के उठ के चला गया। कोई खास कंडीशन के अंदर कि सबके टाइम जुदा जुदा हैं और इस तरह से किया जाए तो ये एक कंडीशनल चीज है, ठीक है। वगरना कोशिश करो दीनदारों कि सारा कुटुंब मिल के बैठ के खाओ। ये हमारी ट्रेडिशन है। जमीन पे सुफरा पड़ा होवे, जो पहले जमाने के अंदर हम जमीन पे बैठ के खाते थे, अभी टेबल कुर्सियां आ गई, तो इसमें कोई ट्रेडिशन फर्क नहीं पड़ता कि जमीन पे बैठे या टेबल कुर्सी पे बैठे। हमारे जमाने के अंदर घर छोटे होते थे, कुटुंब ज्यादा होता था, टेबल रखने की जगह भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। टेबल कुर्सी होवे कि जमीन होवे, लेकिन सुफरा जब बिछाया जाए, घर में जितने आदमी होवे, जहां तक बन सके सब लोग मिल के खाओ, उसमें बरकत होती है। 2 आदमी बाद में खाएं, 4 आदमी पहले खा ले लें, 2 आदमी पहले खा ले लें, 4 आदमी फिर खा ले लें, एक आया और खा के उठ के चला गया, ये बेबरकती है। इस्लाम ने मना किया, रसूलुल्लाह की हदीसों में ये चीज मौजूद है। और मैंने तो हजारों फैमिलियों के अंदर खाने खाए हैं। मिशनरी के तौर पे हम जब घूमते हैं तो हजारों आदमी हमको दावतें देती हैं, घरों पे आते जाते हैं। तो बाद ऐसे जो बुजुर्ग घर होते हैं, बाद ऐसी फैमिलियां होती हैं जो कल्चर्ड फैमिलियां होती हैं, उनकी हालतें देखी जाती हैं। मिल के खाओ, फिर जो कुछ भी पका है मिल के खाओ। बच्चे भी साथ बैठे, सिवा के बहुत छोटे बच्चे
کہ جو ٹائم کے حساب سے نہیں رہ سکتے ان کو ماں الگ کسی روم کے اندر یا آنے سے پہلے ان کو کھلا دے دے، کوئی بات نہیں، وہ بچوں کی بات اور ہے، لیکن گھر کے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اور پہلے بزرگوں کی پلیٹ میں کھانا دو۔ اگر بیٹھ گئے ہو، مات پتا بزرگ کے کوئی مہمان آیا ہے، اس کے پہلے اپنے منہ میں کبھی کھانا مت ڈالو، پہلے بزرگ کھانے، سب سے پہلے مہمان کے سامنے پلیٹ رکھو، اس کے بعد مات پتا اور بزرگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لے لیں، اور اسی طرح سے عمر اور عہدے کے حساب سے رینک میں سب سے چھوٹا سب کے پیچھے کھاوے۔ یہ ٹریڈیشن ہے ہماری۔ مہمان کا سواگت پہلے کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے عربستان کے اندر، اور وہ بزرگ کا نام تھا، اگرچہ وہ سنیوں کے بزرگ ہیں، امام شافعی۔ ہم ان کو امام نہیں مانتے، لیکن ان کے اندر، وہ سنیوں کے اندر امام کے طور پہ مانے جاتے ہیں، مگر شافعی کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ علی کو بہت مانتے تھے، حالانکہ سنی تھے۔ سنی لوگ علی کو وہ درجہ نہیں دیتے کہ جو شیعہ دیتے ہیں، لیکن امام شافعی نے حضرت علی کو خدا کا درجہ دیا۔ ان کے گھر میں ایک دفعہ مہمان آئے۔ مہمان جب آئے تو انہوں نے اپنے نوکر کو کہا، ہاتھ دھلانے کے لیے چلم کی آفتابہ لے کے آؤ۔ اسلام کے فیملیز میں، گھرانوں میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، اور ہمیں بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، کیونکہ ہم اس ہاتھ سے بہت سی چیزیں پکڑتے ہیں، کبھی ہم بوٹ باندھتے ہیں، کبھی کوئی چیز پکڑتے ہیں، کتاب پکڑتے ہیں، کرسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کس جگہ کچھ جرمز ہونے چاہیے، ہم کسی آدمی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو کئی آدمیوں کے ہاتھوں میں کوئی ایسے جیو جنتو یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس کے لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ یہ جو چھری کانٹے سے کھانا کچھ خراب نہیں اور اسلام کے اندر منع بھی نہیں ہے، لیکن بعض کھانے اس قسم کے ہیں کہ یورپ والے بھی چھری کانٹے چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو کہ آپ کسی بڑی ہوٹل کے اندر بھی جاؤ، ریسٹورینٹ میں، اور آپ کے سامنے سیکا ہوا ککڑا آوے تو ساری دنیا کے اندر سیکے ہوئے ککڑے کو ہاتھ سے کھاتے ہیں، چاہے وہ پیرس ہوئے کہ نیو یارک ہوئے۔ بعض کھانے ہاتھ سے کھانے میں مزہ آتا ہے، جیسا کہ پلاؤ ہے، بریانی وغیرہ ہے، مگر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے۔ تو امام شافعی نے اپنے نوکر کو کہا، چلم کی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آیا تو اس نے مہمان کے سامنے رکھا، تو کہا نہیں، پہلے میرے سامنے رکھو۔ تو اس کو بہت اچرت ہوا کہ مہمان کی عزت تو پہلے ہونی چاہیے، تو اس نے اپنے مالک کے ہاتھ دھلائے۔ امام شافعی گھر والے نے، ہوسٹ نے پہلے خود ہاتھ دھوئے اور پھر مہمانوں کے ہاتھ دھلائے۔ جب مہمان لوگ ہاتھ دھو رہے تھے تو اس نے کیا کیا، بوٹیاں توڑ توڑ کے، کھانا نکال نکال کے مہمانوں کی پلیٹوں میں ڈالتا گیا۔ مہمان کو کھلانا، بھلے ایک چمچہ بھی مہمان کی پلیٹ میں ڈالنا ہماری ٹریڈیشن ہے۔ 1946 کے اندر حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک بڑا گرانڈ ڈنر دیا، جس کے اندر گورنر اور راجے اور مہاراجے اور بڑے لوگ تھے، لگ بھگ مانو کہ 800 سے 1000 آدمی ہوئیں گے۔ والکیشور کے بنگلے صاحب نے یہ ڈنر کا انتظام کیا، اور اس کے اندر جماعت کے بہت سے لوگوں کو کام کرنے کے لیے، والنٹیئر اور اسکاؤٹس کے لیے جانا پڑا۔ مولانا سلطان محمد شاہ، ابھی سب آدمیوں کی بیٹھنے کی تو جگہ نہیں تھی، جتنی بھی کرسیاں آ سکی، کئی لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے تھے، تو والنٹیئر پلیٹ اٹھا کے ساتھ چلے، اور امام سلطان محمد شاہ اپنے دست مبارک سے چمچے بھر بھر کے مہمانوں کی پلیٹوں میں ڈالتے جاوے، کھلاتے جاوے۔ تم کو کیا چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کو حکم کرے، جاؤ فلانی چیز اس کو گھٹ گئی ہے، لے کے آؤ۔ تو مہمان کی پلیٹ میں کھانا ڈالنا یہ ایک مہمان کی عزت ہے۔ اس کو اتنا پریس مت کرو کہ بیچارہ کھانے سے مجبور ہو جائے اور بعد میں اس کو وامٹ کرنا پڑے، نہیں،
एक चमचा भी ट्रेडिशन के हिसाब से मान और आबरू बढ़ाने के लिए, ऑनर देने के लिए मेहमान की प्लेट में डालना चाहिए। खाना जब भी पूरा हो गया और फिर पानी हाथ धुलाने के लिए मंगाया तो पहले वो शेख के पास यानी इमाम शाफी के पास लाया, कहता नहीं जाओ पहले मेहमानों के पास। तो मेहमानों में से एक आदमी ने सवाल किया, कहते या हजरत मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अंगत सवाल है। बोले कोई बात नहीं पूछो। क्या बात है? कि पहले आपने हाथ धोए, मेहमानों ने खाना खाने से पहले बाद में हाथ धोए। अब खाना पूरा हो गया तो आपने पहले मेहमानों के हाथ धुलाए और अपने हाथ बाद में धोएंगे, ये उल्टा क्यों? तो उसने कहा बात ऐसी है, मैंने पहले इसलिए हाथ धोए कि मैं जल्दी से मेहमानों की प्लेट में खाना डालूं और मेहमानों को खिलाऊं। अगर मेहमान हाथ धो ले तो मैं सबसे आखिर में रहूंगा तो इतनी देर मेहमानों को ठहरना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले हाथ धोए ताकि मेहमानदारी करूं। और खाना खा चुकने के बाद आप लोग पहले हाथ धो, क्योंकि ये आपकी ऑनर है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई आदमी इस वक्त भी मुझे मिलने के लिए आ जाए तो मैं उसको फौरन अपने साथ बिठा के उसकी प्लेट में खाना डालूं, इसके लिए मैं छेले हाथ धोऊंगा। कितनी अकल और समझ की बातें होती हैं। हमारे घरों के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। जो मेहमान आवे वो मेहमान 12 बरस का छोकरा भी क्यों ना होवे, लेकिन जो मेहमान आया है मेहमान की इज्जत तो बहुत होनी चाहिए। हमारा सारा आका गिनान की सदरुद्दीन ने रच दिया मेहमान की इज्जत, और वो भी ऐसा मेहमान कि जो इमाम की तरफ से भेजा हुआ अभ्यागत होवे, कोई ऑफिसर होवे हाजिर इमाम का। तो इस तरह से हमारे घरों के अंदर मेहमानदारी जो है वो हमारी बुराई बहुत आला दर्जे की प्रणाली का है, एक उत्तम ट्रेडिशन है जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत कम है। हमारे घरों के अंदर उठना बैठना, खाना पीना वगैरह, रीत भात वगैरह बच्चों को ये सिखानी चाहिए कि बुजुर्गों के साथ किस तरह से चले और वर्ते। बापा को बापा करके बुलावे, डैडी को डैडी करके बुलावे, माँ को माँ करके बुलावे, यानी बुजुर्गों की इज्जत आबरू बच्चों को सिखाना छोटी उम्र के अंदर, ये हमारी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है। और इन बुजुर्गों के सामने किस तरह से बैठा जाए। एक दफा मैं इमाम के हुजूर में गया, ये 63 की बात करता हूँ। मौला ने मुझको 5 साढ़े 5 महीने लंदन में रखा और हर महीने में मिलने के लिए मौला को पेरिस जाता था। तो मैं पहली दफा जब गया मौला के पास तो मैंने कहा खुदावंद लंदन की जमात बहुत याद करती है, मौला बहुत बरस हुए तू आया नहीं। मौला फरमाया आऊंगा। महीने के बाद मैं वापस गया, मैं कहा खुदावंद कभी आओगे? आऊंगा। तीसरी दफा जब मैं गया फिर मैंने मौला को अर्ज की, मेरे साथ तीसरी दफा मुखी कामड़िया साथ थे, मुखियानी थी और कामड़िया थे। तो अर्ज की खुदावंद बहुत टाइम से आए नहीं, बस टाइम मिलेगा मैं आऊंगा। मैंने हाथ जोड़े, जब हाथ जोड़े तो बोला कुछ नहीं, साहब हंस पड़े क्या है। मैंने कहा खुदावन हमको वजह बताओ क्यों नहीं आते। माँ बाप ने उड़ाने की बात की, मैंने हाथ इसी तरह से जोड़ रखे। मैं बोला खुदावन बेअदबी की माफी मांगता हूं, लेकिन मुझको जानना है कि क्यों नहीं आते। खुदावन कोई वजह से नाराज हो। माँ बाप नीचे देखने लगे, फिर मुझको कहा कि देख तू मिशनरी है, तेरा यह फर्ज है कि तू जमात को कहे कि इमाम का अदब क्या है। मैंने कहा खुदावन मेरा फर्ज है। मौलाना हाजिर इमाम ने एक बात सुनाई जिसको सुन के मैं बिल्कुल चुप हो गया। मुझको बहुत बुरा भी महसूस हुआ कि हमारी जमात में ऐसे लोग भी हैं। बोला मुझे कहने लगे मुखियानी और कामड़िया बैठे थे। मुखियानी काउंट अब्दुल्ला हाशिम गांधी की लड़की थी और कामड़िया मिशनरी जहांगीर का बड़ा भाई। ये दोनों मेरे साथ हैं।
मौला फरमाने लगे, तूने लंदन का जमात खाने के सामने हॉल देखा है? मैंने कहा खुदा, जमात खाने और सामने हॉल के बीच में पैसेज है, उधर लगभग इतना ही बड़ा हॉल है, इससे जरा छोटा है, नहीं इतना ही बड़ा है, क्योंकि उसमें सीढ़ी नहीं और जमात खाने के अंदर ऊपर दादर जाता है, इतनी जगह कम की है। तब फरमाया, मैं जब भी लास्ट टाइम लंदन गया तो उस हॉल के अंदर मैंने इंतजाम करने के लिए, पर्सनल मुलाकातें देने के लिए मैंने बदरू को कागज लिखा। बदरू कौन? सर इबू का लड़का बदरू उस वक्त काउंसिल का प्रेसिडेंट था। मौलाना हज़रत इमाम फरमाया कि बदरू ने उधर इंतजाम किया। मैंने उधर जाके कहा कि मैं अड़ी कलाक लेके आया हूं, तुम्हारी एक एक की मैं सब पर्सनल बात सुनूंगा। 63 में बहुत थोड़ी छोटी सी जमात थी, हार्डली 200, 250 या 300 आदमी होंगे, और वो भी खास लंदन नहीं लेकिन नजदीक के सब सबर्ब मिला के। हज़रत इमाम फरमाया, मैंने बदरू को कहा कि मैं 2.5 कलाक लेके आया हूं निरात से, एक एक जन आवे और मेरे पास अपनी जो कुछ भी प्रॉब्लम है रुजू करे। हज़रत इमाम स्टोरी सुना रहे हैं। तब फरमाया, तूने देखा है उधर अंदर एक छोटा सा सोफा पड़ा हुआ है और वो सोफा आयरन का है? मैंने कहा खुदावन, अंदर एक छोटा सा सोफा पड़ा था जो आयरन की सरिये का बना हुआ था, और वो इतना छोटा था कि ऐसा बड़ी कुर्सी जितना था। उस सोफा के अंदर 2 आदमी बैठ नहीं सकते, लेकिन पड़ा था। हज़रत इमाम ने फरमाया, मैं उधर जाके बैठ गया। मैं जब बैठ गया तो पहला एक आदमी आया, दरवाजे के ऊपर बदरू खड़ा था और एक एक आदमी को भेजता था अंदर। एक लड़का अंदर आया, वो मेरे सामने आके बैठा, मुझे उसने सलाम किया, मैंने उसको बहुत दुआसीज फरमाई, उसकी प्रॉब्लम का खुलासा किया। जब वो चला गया तो दूसरा लड़का आया। दूसरा लड़का आया तो साहब कहते हैं, तुझे मालूम है कहाँ बैठा? मैंने कहा नहीं खुदा, वो मेरे बाजू में आके बैठ गया सोफा के ऊपर, और तुझे पता है वो सोफा कितना बड़ा? मैं बोला खुदा, उसके ऊपर तो हार्डली एक आदमी बैठ सकता है। सफर में वो इतना फंस के बैठा कि मेरे को ऐसा हटना पड़ा, और फिर उसने पांव उठा के पांव के ऊपर पांव रखा और उसके बूट से मेरी पाटलून लगने लगा। माँ बाप चुप हो गया। थोड़ी देर चुप रह के माँ बाप फरमाया, मैं उठ के चला गया, सब प्रोग्राम छोड़ दिया, उसके बाद नहीं। मैंने कहा खुदावंद, तूने मुझको अपना मिशनरी बनाया है, ये मुखियानी कमड़िया है, हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, पीर की तो फैल उस लड़के के और सारी जमात के तू गुनाह बख्श, लेकिन तू जमात के ऊपर राजी हो और आ। वाज़ों के अंदर मैंने ये बात एक दफा कहीं कही है, अब याद नहीं, लेकिन आज फिर याद करता हूं तो दिल दुखता है कि हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग कि जो इमाम ज़मान के बाजू में इस तरह से जाके बैठ जाए और पांव उठावे तो उसका बूट माँ बाप की पाटलून से लगे। माता पिता का इसके अंदर जरूर गुनाह है। छोटी उम्र से अपने घर के अंदर जो बड़े हैं उनका मान सिखाओ, जमात के बड़े हैं उनका मान सिखाओ, और हज़रत इमाम का मान सिखाओ। हमारा मजहब जो है उसके अंदर हम अपने मौला को खुदा के दर्जे पे मानते हैं और उसको इतना प्यार करते हैं। जमात खाना भी ऐसी उसी इमाम के घर की जगह है। कई लोग हैं शरीर मोटे हैं या कोई टांगे दुखती हैं, कोई बीमारी है, बैठे बैठे थक जाते हैं, ऐसा पांव लंबे करके बैठ जाते हैं जमात खाने के अंदर। दीनदारों ठीक नहीं है। मैं तो बहुत दफा पर्सनली टोकता भी हूं लोगों को, मानो ना मानो आपकी खुशी, मैंने अपना पूरा कर दिया, अभी आपका गुनाह आपके सिर के ऊपर। लेकिन कभी ऐसा हो गया है, मैं भी कोई अभी जवान नहीं हूं, मेरे भी पांव दुखते हैं, तो पांव अगल बगल कर लो, आसन बदल डालो, लेकिन पांव लंबे मत करो। जिस तरफ मुंह करके सिजदा करते हो उस तरफ लंबे पांव करके बैठते हो, ये कहां की रीत है?
किस माता पिता ने आपको ऐसा सिखाया है? कौन से गुरु मुर्शिद ने आपको ये कहा है? बहुत ही पांव दुखते हैं, थोड़ी बहाना करके बाहर चले जाओ, लोही ठीक हो जाएगा, फिर आके बैठ जाओ। लेकिन जमात खाने में लंबे पांव मत करो। घर के अंदर भी अगर बाप बुजुर्ग बैठा है, नाना बैठा है, सास ससुरा बैठा है, दादा बापा बैठा है, चाचा मामू बैठा है, तो उसके सामने लंबे पांव करके मत बैठो, उसके पास भी मत बैठो। ये हमारे मजहब की, हमारी कौम की ट्रेडिशंस हैं जो हमें सीखनी चाहिए। ये हमारे बिहेवियर में और एटिकेट में आता है। एटिकेट की और बिहेवियर की, ट्रेडिशंस की बात करूं कि हमारी ट्रेडिशंस में खाने पीने की जब मैंने बात की कि हाथ धोने चाहिए, तो दीनदारों ये भी हमारी ट्रेडिशन है कि खाना शुरू करने से पहले लुकमा जब उठाओ तो बिस्मिल्लाह करके खाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस खुदा ताला ने ये रोजी रिज़्क दिया, उसने हम पे रहम किया, उसका नाम लेके खाओ। खा चुको तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो। लेकिन एक ट्रेडिशन की बात खाने की मुतालिक है। बाइयां जब घर में खाना पकावें तो जो कुछ भी पकाओ, चाहे भजिए तलो या खिचड़ी बनाओ या बिरयानी बनाओ, एक छोटी सी प्लेट आप अपनी मर्जी के हिसाब से मौला की शाफिर के नाम की जरूर निकालो। ये नादी, ये मेहमानी शाफिर की हमारे रोजी रिज़्क में से निकलनी चाहिए। फिर बच्चों को और घर वालों को खिलाओ। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो, खा चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इसी तरह से कभी भी घर से बाहर जाओ तो भी बिस्मिल्लाह करके याली का नाम लेते लेते सलवात पढ़ते पढ़ते घर से बाहर निकलो। और जब घर में दाखिल हो तभी भी मौला को याद करो कि या मौला मैं अपने घर वापस सही सलामत आया हूँ। ये हमारी ट्रेडिशंस हैं जो हमें याद करना चाहिए। नवादागिना पहनो, नवे कपड़े पहनो। रसूल अकरम ने फरमाया है कि जब भी तुमको कोई नई चीज भेंट मिले या तुम खुद खरीद के लाओ तो ऐसा समझो कि अल्लाह ने तुमको ये चीज दी है, तो शुक्र करो या मौला तूने मुझको आज नए कपड़े पहनाए, तेरा शुक्र। वगरना इंसान मर जावे तो कौन नए कपड़े पहनाता है। तो हर हालत के अंदर हमको अपने मौला को याद करना चाहिए। बुजुर्गों की इज्जत रखनी चाहिए, अदब हिश्मत होनी चाहिए। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आवे तो आप उठ के उसको स्वागत करो। सिवा कि आपसे छोटा होवे तो और बात है, जैसे कि कोई आपका बच्चा आ गया, आपका भतीजा वगैरह आ गया, या आपका कोई नौकर आ गया, या आपका कोई स्टूडेंट आ गया। लेकिन मेहमान को इज्जत से उठ के अपने घर पे बिठाओ। आप उठी तेने बेसन दीजिए, पहले उसको बिठाओ फिर खुद बैठो। और इसी तरह से जब मेहमान घर से जाने लगे तो दरवाजे तक उसको छोड़ नहीं जाओ। घर वालों की वास्ते भी ये हुक्म है कि अगर माँ है तो अपने बच्चे को दरवाजे तक पहुंचावे, या अगर कामकाज में पड़ी हुई है तो हर बाहर निकलने वाले आदमी को, औरत को, मर्द को, बुढ़े को, जवान को, सबको ये अपनी फैमिली में ये चीजें सिखाओ कि जब भी घर से बाहर जाओ तो बोल के जाओ, मैं फलानी जगह जाता हूं। जरूर कहो दीनदारों। इसके अंदर क्या फायदा है? खुदा न करे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो अगर घर वालों को पता होवे तो वो समझ सकते हैं कि फलानी जगह होगा। घर से निकलते वक्त घर वालों को याली मदद करके जाओ। तो जो घर में बैठे हुए हैं जिसको याली मदद करते हो, वो बीवी है या माँ है या बहन है या बेटी है, तो वो क्या बोले, मौला अली मदद, अल्लाह बेली, मौला तेरे साथ है, उसकी प्रोटेक्शन में जाओ। ये वो बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़े राज रमज हैं, इनके अंदर बड़ी प्रोटेक्शन है, इनके अंदर दुआएं हैं, खुदा ताला की हिफाजत है, नेकियां हैं, बंदगी है, इबादत है। घर से बाहर निकलो, घर वालों को बोल के निकलो, याली मदद करके निकलो। जब घर वापस आओ, वापस याली मदद करो, सबको याली मदद करो। और घर वालों की दुआएं होनी चाहिए, वो कहे अल्लाह बेली जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। जमात खाने के अंदर हम आते हैं, जब ये आओ जमात खाने के अंदर और टाइम अगर होवे तो पहले दुआ करा के फिर बैठो। अगर टाइम नहीं है दुआ चालू करने में तो भले आप बैठ जाओ दुआ पढ़ने, 2 दुआ के बाद फिर दुआ कराना। लेकिन 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पहले जमात खाने आओ। आते ही सबसे पहले दुआ कराओ,
गुनाहों की माफी मांग के मुखी कामड़िया के पास से अपनी जगह के ऊपर बैठ के तस्बीह निकालो, लेकिन कभी नहीं आ सकते तो दूसरी बात है। लेकिन ये ट्रेडिशन है हमारी कि जमात खाने में आके पहले दुआ करानी चाहिए। इसी तरह से दीनदारों, छांटा जब ही आता है हमको पहले दुआ करानी चाहिए, छांटा बाद में लेना चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा मुखी कामड़िया होता है कि जो कभी दुआ नहीं कराते, जो तो बनता सुधी मुखी कामड़िया पहले आते हैं, एक दूसरे से दुआ करा लेते हैं, लेकिन जहां तक बन सके टाइम नहीं हो गए तो एक जुदा सवाल है, लेट आया और आके सीधा बैठ गया ऊपर और फिर उसके हमने न्याज की ली। लेकिन हमारी ट्रेडिशन ये है, पहले दुआ कराओ, न्याज फिर पियो, छांटा बाद में लो। ऐसा नहीं है कि दुआ पहले कराओ, लेकिन कभी ऐसा हो गया तो हो गया। ये ट्रेडिशन की चीजें हैं। और मैंने आपको गटपाट न्याज के लिए, सुकृत के लिए, जुड़े के लिए तो बातें बताई, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो मोटी मोटी खास जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रजू कर दी। 7 दिन की ये सीरीज आज पूरी हुई, और फिर भी किसी भी भाई बहन को इन बाबतों में कोई सवाल करना होवे मुझे खुशी के साथ पूछना, मैं आपको खुलासा भी दूंगा। और जो चीजें मैं नहीं कह सका, ऐसी भी चीजें कभी आपको याद आ गई तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती हो, दीन और दुनिया में सुखी करे। एक बात मैं और बोलूं, मुझे अब याद आ गई, और वो ये है दीनदारों कि दुआ पढ़ने के अंदर बाज जगह हमें हाथ उठाने चाहिए। ये हाथ उठे ना, उस पर से मुझको एक बात याद आ गई, मुझे मन में पहले कल से था कि बोलूंगा। दुआ के अंदर दूसरे पाठ में अल्लाहुम्मा या मौलाना अंत सलाम से हम हाथ उठाते हैं, चौथे पाठ के अंदर हम हाथ उठाते हैं, 5वें पाठ में उठाते हैं। तो जहां जहां दुआ के अंदर हमें हाथ उठाने हैं, आप हाथ उठाओ। और हाथ उठाने की जो रीत है रसूल अकरम ने और मौलाना इमाम जाफर सादिक ने हमको बताया, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी चौपड़ी में लिखा कि ये 2 बुक इकट्ठे करो, 2 हाथ ऐसे साथ मिलाओ। दुआ का तरीका ये है, ऐसा नहीं 2 हाथ जुड़े रहे, वो नहीं, ये सुन्नियों की, अरबों की रीत है। इस्माइलियों की रीत इमाम ने इस तरह कही कि बुक भेगा करो, 2 बुक हाथ के जोड़ो और अपने सीने के सामने तक लाओ। ऐसा नीचे नाफ के पास नहीं, या ऐसा हाथ रखे रखे नहीं, लेजी तरह नहीं, हाथ दोनों उठाओ, 2 हाथ मिलाओ और अपने सीने के सामने, हार्ट के सामने ये 2 हाथ रखो। हार्ट से थोड़ा ऊंचा होवे तो हरकत नहीं, लेकिन हार्ट से नीचे नहीं होने चाहिए। दुआ के अंदर भी सारी जमात हाथ उठावे, बच्चों को भी ये बात सिखाओ। और जब भी हमें दुआ मिले, खाना वदान मिले, इमाम की तालीफों के अंदर या मुखी कामड़िया से आमीन कहना चाहिए। मौला आपको सुखी आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, बलाएं आफतें दूर करे, 2 जहान में छतर छाया में रखे, हकीकती समझ दे, फरमान बरदार मोमन बना, 10 सुकरीत में पूरा रखे, हर बदी बुराई से बचा के रखे। मौलाना हाजिर इमाम को तुम कबीले जुमले जमात में सलाह सब मोहब्बत दे ले। मौलाना हाजिर इमाम आपकी रोजी रिज़्क़ ज्यादा करे, आपका ईमान ज्यादा करे, आपकी तंदुरुस्ती ज्यादा करे। मौलाना हाजिर इमाम आपको अपनी औलाद का सुख दे ले। मौलाना हाजिर इमाम सहरबात दीदार इनायत करे। पीर पूछी रहो रह चलो तुसा, पीर पूछी ने रह चलो, ए उजड़ पग नहीं पावना,